So, hello everyone. Today we will be covering software testing questions. These are the manual testing questions, and I will be covering most of the important questions in this lecture. Or this lecture can be divided into multiple parts. So, let's start by first question. What do you understand by software testing? तो software testing होता क्या है? सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ वैलिडेशन प्रोसेस। एक वैलिडेशन प्रोसेस है जो कि कंफर्म करता है दैट योर सिस्टम इज वर्किंग फाइन एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही चल रहा है। सो दैट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Okay, so next question is when should you stop the testing process? This is a very important question that आपको टेस्टिंग कब ख़त्म करनी चाहिए, कब आपको रोकनी चाहिए. So the testing activity ends when the testing team completes the following milestones. कुछ milestones हैं, उसके बाद ही हमारा जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो मतलब कंप्लीट होता है. So ओके सो तो हमें कब रोकनी चाहिए अपनी टेस्टिंग. सो कुछ माइलस्टोन्स हैं, जैसे फर्स्ट हो गया टेस्ट केस एग्जीक्यूशन. सो अगर आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फुल टेस्ट साइकिल आफ्टर द फाइनल बग फिक्सेस मार्क्स द एंड ऑफ द टेस्टिंग फेज. कि जितने भी आपने बग्स डाले थे उस टेस्टिंग के टाइम पे और वो सभी के सभी फिक्स हो गए हैं, उसके बाद आपने दोबारा से साइकिल रन किया है, सबके सब टेस्ट केसेस दोबारा पास हो गए हैं, दैट मीन्स यू आर डन. मतलब आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है. सेकेंड इज टेस्टिंग डेडलाइन. अगर आपकी डेडलाइन कंप्लीट हो गई है तो द end date of the validation stage also declares the closure of the validation if no critical or high priority defects remaining in the system. So अगर आपकी validation जो है या deadline जो है वो ख़त्म हो गई है and आपके कोई भी critical या high priority defects जो हैं वो रहते नहीं हैं अभी, मतलब वो close हो चुके हैं, so that time also आप इसको declare कर सकते हो कि आपका ये जो testing process है ये complete हो गया है. And the third one is coverage, code coverage. So it is the amount of the code concealed by automated test. If the team achieves the intended level of code coverage ratio, then it can choose to end of the validation. So this is related to the automated test जो कि आपके complete हो गए हैं, उसमें आपने code coverage complete कर दिया है, मतलब जो main चीज़ें थी वो सब cover हो चुकी हैं, तो then you can say कि yeah you are done with your testing. उसके बाद है मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट. सो इट इज MTBF. So mean time between failure rate refers to the average amount of time that a device or a product functions before failing. So ये टाइम है जो कि जब एक डिवाइस या फिर कोई प्रोडक्ट फंक्शन करता है फेल होने से पहले. This unit of measurement includes only operational time between failure and do not include repair time, assuming the item is repaired and begins functioning again. So these figures are often used to project how likely a single unit is to fail within a certain period of time. तो एक single कोई चीज़ है, काम हमारा कोई फीचर है वो फेल हो रहा है within a certain period of time. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें हमारे मेजरली ये पॉइंट्स होते हैं टेस्टिंग जब हम रोकते हैं. हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूशन हो गया, हमारी डेडलाइन हो गई, देन कोड कवरेज रेशियो, देन मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट. उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मीन्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. So these two are the very important terms in manual testing, verification and validation. So in software testing, verification is a process to confirm the product development is taking place as per the specifications and using the standard development procedures. The main process compromises in the following activities: inspections, reviews, walkthroughs and demos. So basically verification is a static process जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सही से बन रहा है या नहीं. उसमें इंस्पेक्शंस होती हैं कि आप सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रिव्यूज़ होते हैं बार बार, वॉक थ्रूज होते हैं. वॉक थ्रूज मतलब बार बार चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. डेमोज हो गए, डेमो दिए जाते हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन कि UI ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा. बेसिकली स्टार्टिंग में ये चीज़ें देखी जाती हैं.
So now comes to validation. So validation is the means to confirm that developed product doesn't have any bugs and it's working as expected. It compromises the following activities. सो बेसिकली डायनेमिक ये होता है, वैलिडेशन इज अ डायनेमिक थिंग. सो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में हम ये मतलब इसमें ये चेक करते हैं कि कोई भी बग्स ना रहा हो. सो इसमें वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट मतलब कंफर्म करते हैं कि इसमें कोई भी हमारा बग नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है. सो वैलिडेट कैसे करेंगे हम, दो चीज़ों से, फंक्शनल टेस्टिंग करके, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करके. सो वैलिडेशन में डायनेमिक प्रोसेस है और इसमें हम ये एक्टिविटीज़ रखते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल. Next question is, what is static testing? When does it start and what does it cover? So again, static testing, यही हमारा था ना यहाँ पे verification, static testing. So static testing is a white box testing technique that directs developer to verify their code with the help of checklist to find errors in it. Developers can start the static testing without actually finalizing the application or program. And static testing is more cost effective than the dynamic testing as it more areas than dynamic testing in the shorter time. So static testing में हमारा kind of white box testing हो जाता है, ठीक है. So now let's come to the black box testing question. So it is a standard software testing approach that requires tester to access the functionality of the software as per the business requirements. The software is treated as a black box and validated as per the end user point of view. So here's a difference come between white box testing and the black box. इसको वैसे तो हम आगे जाके करेंगे अच्छे से जब इसके बारे में कोई क्वेश्चन आएगा. बट वाइट बॉक्स में क्या होता है कि आपको कोड का ज़्यादा होता है कि कोड की मतलब कोड है उसमें आपको कोड के बारे में होता है. सो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, ये ब्लैक बॉक्स की तरह है कि आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है. ब्लैक बॉक्स है जिसमें आपको टेस्टिंग करनी है, जिसमें आपको कोड का कोई नॉलेज नहीं है और आपने वो सिर्फ एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. तो उसके मतलब आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन सा कोड कैसे हो रखा है. जस्ट आपने एंड यूज़र बन के, कस्टमर बन के, एंड यूज़र बन के उसको टेस्ट करना होगा. सो वाइट बॉक्स जो है मोस्टली डेवलपर्स करते हैं एंड ब्लैक बॉक्स जो है वो कि जो ये टेस्टर्स होते हैं ये करते हैं, ब्लैक बॉक्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is a test plan and what does it include? A test plan stores all possible testing activities to ensure a quality product. It gathers data from the product description, requirement and use case documents. So test plan क्या होता है, ये स्टोर करता है all जो भी टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो सब टेस्ट प्लान में होती हैं, ताकि हमारा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो मेंटेन रहे. और इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, डिस्क्रिप्शन हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया एंड यूज़ के डॉक्यूमेंट्स हो गए. सो मोस्टली क्या होता है इसमें, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्टिंग करने का, इसका स्कोप कि इसका स्कोप क्या है, इसके टेस्टिंग से क्या होगा, टेस्टिंग द फ्रेम, इन्वायरमेंट, रीज़न फॉर टेस्टिंग, क्राइटेरिया फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट, डिलीवरेबल्स, रिस्क फैक्टर. तो ये सब चीज़ें टेस्ट प्लान में इंक्लूडेड होती हैं. इन फ्यूचर मैंने टेस्ट प्लान के ऊपर प्रॉपर भी एक वीडियो शूट करना है. सो उसका जो अगर लिंक, मैंने वीडियो का लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, तो आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो. उसमें टेस्ट प्लान के बारे में अच्छे से डिस्कस हो रखा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मैन बाय टेस्ट कवरेज? सो टेस्ट कवरेज क्या होता है? अभी हमने ऊपर बात करी थी कि टेस्ट कवरेज हो गई है, एक टेस्ट कवरेज हो गया, एक कोड कवरेज हो गया. कोड कवरेज वैसे अलग है क्योंकि कोड का उसमें कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है कवरेज. बट टेस्ट कवरेज क्या होता है? टेस्ट कवरेज इज अ क्वालिटी मैट्रिक टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग कंप्लीटेड फॉर अ प्रोडक्ट. तो उसकी टेस्टिंग अच्छे से कवर हो गया है कि नहीं हो गया है. इसमें दोनों आते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एक्टिविटीज़. दिस मैट्रिक इज़ यूज टू ऐड मिसिंग टेस्ट केसेस. तो इसमें क्या होता है, टेस्ट कवरेज में आपके अगर कोई टेस्ट केसेस मिसिंग रह गए हैं तो वो उसमें ऐड हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू अचीव 100% टेस्टिंग कवरेज एंड हाउ वुड यू इंश्योर इट? It is considered not possible to perform 100% testing of any product. तो किसी भी प्रोडक्ट की 100% टेस्टिंग नहीं हो सकती है. बट यू कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू कम क्लोजर, मतलब कम से कम
जो बग्स हैं वो छूटे, तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट इज सेट अ हार्ड लिमिट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हार्ड लिमिट अगर आप लगाओगे कौन से फैक्टर्स पे? परसेंटेज ऑफ टेस्ट केसेस पास, तो परसेंटेज ऑफ टेस्ट केसेस पास अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। देन नंबर ऑफ बग्स फाउंड कम होने चाहिए, तो ये हार्ड लिमिट हो गई। देन रेड फ्लैग टेस्ट बजट पे और डेडलाइंस पे। देन ग्रीन फ्लैग entirely functionality get covered in the test cases, और सारे के सारे क्रिटिकल और मेजर बग्स जो हैं वो क्लोज हो गए हैं। तो ये कुछ हार्ड, रेड और ग्रीन फ्लैग्स हैं जिससे आप इंश्योर हो सकते हो कि आपने मोस्ट ऑफ दी टेस्ट कवरेज जो है वो कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। So unit testing has many names such as module testing and component testing. So unit testing को हम module testing भी बोल सकते हैं, component testing भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है unit testing? So many times if the developers who test individual units, अगर वो अपने जो उन्होंने फीचर बनाया उसको इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल को चेक कर रहे हैं, तो वो कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो यूनिट टेस्ट में आता है। और वहीं अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग है तो हम टेस्टर्स वैलिडेट कर रहे हैं हाउ वेल टू और मोर यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि वो एक एक यूनिट जो है अगर वो साथ में कंबाइन कर दिया जाए तब वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो उस वो आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। सो दे आर 3 ways टू वैलिडेट इंटीग्रेशन: बिग बैंग अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। तो इनके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फॉर नाउ ये सब आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में है: बिग बैंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी डू सिस्टम टेस्टिंग एट एनी स्टेज? नो। सिस्टम टेस्टिंग, अब देखो एक हर एक टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, तो हर एक टेस्टिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होगी। जैसे यूनिट टेस्टिंग है वो एक इंडिविजुअल होगी, इंटीग्रेशन है 2-3 मॉड्यूल्स को कंबाइन होकर हो रही है, तो सिस्टम का भी एक अपना टाइम है। सो नो, सिस्टम टेस्टिंग शुड स्टार्ट ओनली इफ ऑल द मॉड्यूल्स आर प्लेस एंड दे वर्क करेक्टली। सो इंटीग्रेशन में 2 दिन साथ में कंबाइन कर रहे हैं और सिस्टम में वो सारे के सारे जितने मॉड्यूल्स थे वो कंबाइन कर दिए हैं और सबके सब काम कर रहे हैं। सो हाउएवर इट शुड बी परफॉर्म बिफोर यूएट। सो यूएट इज व्हाट? इट इज अ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So before starting the next question, let's take a small break and हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस ना बनाएं एंड छोटी छोटी वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लें। सो फॉर दिस वीडियो हम इतने क्वेश्चन कवर करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।